माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग 10 बजे से बैठी हैं हमारी बहन सना खान और हमारे भाई मुफ्ती अनस का दीदार करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अपने वालिदैन के साथ हैं। मुफ्ती अनस के वालिद भी हैं और वालिदा भी हैं और हमारी बहन सना खान भी है। तो मैं इनका स्वागत वगैरह हो जाए फिर हम लोग इंशाल्लाह मुफ्ती अनस साहब से कहेंगे 2 मिनट बात कर लेंगे, उसके बाद फिर सना बहन आपसे बात करेंगी और हम सारे मर्दे चले जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। मैं सबसे पहले किरात के लिए मोहम्मद अयाल को दावत दे रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाच के लिए मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब दे दें। वो जिंदा होकर भी मुर्दार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और हमारा तो ताल्लुक है उस कबीले से कि जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। मैं फिर से सलाम करता हूँ, पूरा मजमा सलाम का जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसके ऊपर हमारे आज के इस मंच पर मुहतमी में जामिया हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो दूसरी तरफ मेरे भी हम नाम हज़रत मौलाना अनस साहब, हज़रत मौलाना अनस सैयद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है कि नज़र आरिफाना अबा जाहिदाना जिगर गाजियाना, तारुफ की तो कतअन ज़रूरत ही नहीं,
ان کو تو جانتا ہے سارا زمانہ. میں ایک چھوٹی سی نعت پڑھنے کا اپنی جگہ لیتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنیے گا. ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, امین کہہ دیں. ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, درد دل کی دوا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے, ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, خود بخود جان میں جان آ جائے گی, روضے مصطفیٰ ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے. اور میری تمام مائیں بہنوں کو شریک کرتا ہوں, اس شعر میں خاص توجہ چاہتا ہوں, کرتا ہوں سنیے گا. کہ گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو, غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو, ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی, فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے. اور اس نعت کا آخری بند, میرے آقا کے دندان والنجم کی ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی, گمشدہ سوئی ایک آنی میں مل گئی, ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے. اور جاتے جاتے 4 مصرے پڑھتا ہوں. اس کی تمہید میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے پاس یوٹیوب پر جب میں نے مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ وہ برف کی ٹھنڈی فضاؤں میں نماز ادا کرتے ہیں, جب وہ تپتے صحرا میں نماز ادا کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے مجھے 4 مصرے پڑھنے چاہیے. لوگوں نے کیا کہا وہ میں نہیں جانتا, لیکن میں 4 مصرے بطور کمنٹ کے ان تک پہنچاتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنیے گا. اگر چوتھا مصرا آپ کو لگ جائے کہ صحیح ہے تو پھر آپ کو قسم ہے یہاں سے پیچھے تک ایک شخص کی دعائیں چاہوں گا. پڑھتا ہوں, سنیے گا. کہ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے, یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے, مغز اس بات پر عاشق ہو تجھ پر اے انس سید, تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے, تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے, مغز اس بات پر عاشق ہو تجھ پر اے انس سید, تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے. اور 4 مصرے آخری میں. اور یہاں پر تمہید میں صرف اتنا کہوں گا کہ حیرت ہے مجھے کہ ہماری آج کی مائیں بہنیں داڑھی ٹوپی والے شوہر کو نہیں پسند کرتی ہے, لیکن آپ کے سامنے ایک مثال قائم ہے. میں وقت کم ہے, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, سیدھی سے آپ سمجھ جائیں گے. اگر ثنا خان کو جب مائک پر لایا جائے, اگر وہ اپنا بیان کرے گی اپنی بات کو, تو شاید اس طرح بیان کرے گی. پڑھتا ہوں, سنیے گا. کہ مجھ کو تو مال و دولت و نازل پسند ہے, جس گھر میں ہو عالم وہ مجھے گھر پسند ہے, مفتی انس سے کر کے نکاح پولیس خان, مفتی انس سے کر کے نکاح پولیس
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سلمہ میڈم کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہماری بہن ثنا خان کو گلدستہ دے کر کے اور ہمارے رواج کے مطابق شال اڑا کر کے ان کا سواگت کریں گے. میں ڈاکٹر ریاض کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مفتی انس کو شال دے کر کے اور گلدستہ دے کر کے ان کا سواگت کریں گے. میں نگار میڈم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مفتی انس کی ممی مدر کو ہار پہنا کر کے ان کا سواگت کریں گے. مدر میں ہمارے اس ٹرسٹ کے فاؤنڈر مولانا حبیب احمد کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ سید علی فادر آف مفتی انس میں محمد انس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مولوی عبدالرزاق صاحب کی گلدستی کریں. میں محروم صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ مولوی عبدالرزاق کی ہے گلدستی کریں. طیبہ میڈم کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ سواگت کے 2 شبد کہیں. Assalamu alaikum everyone. Good noon everyone. On behalf of the Faizan School, we welcome the president of our school, Maulana Habib Ahmed Salam, and we are grateful and thankful to him for giving us such a great opportunity to for having a Mufti Anas sir and the former actress Sana Khan as our chief guest, who is the dean of the most renowned person. Sana Khan is working towards connecting the mind of strive towards the Islamiyat. We are grateful to both of you for accepting our invitation and becoming a chief guest of our school. We are so honored to chief guest for our school. I am certain that all the parents present here are also moved assuredly want to their children to be a successful. Sana Khan is a famous Indian actress, model and dancer. She began a career in modeling. Reason for living acting to spend her life in the service of humanity, following the orders of her creator. Allah gives special moments to each and every person, but few are selected to among those. One has selected, and from those we are think is one Sana Khan, who has
has created a great example for the youngsters of recent time. Mufti Anas Sayyed is a religious reader and a scholar whom Allah has sent a great partner. We know that all are mortal. If we want to die, live or to die because of our real life, start after the death. She has taken out the daulat and shohrat, and she has started to lead the Allah's order. Thank you each and everyone. Now I invited Sana Khan to मैं दावत दे रहा हूँ मुफ्ती अनस साहब को कि कुछ चंद जुमलों में हमारी रहनुमाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे काबिल एहतराम माँ और बहनों और इस जामिया के मुदीर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आप हज़रात काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बस सफ़र की किल्लत की वजह से हमें टाइम की वक्त पे नहीं पहुँच सके, उसके लिए माजरत कहाँ है और बहुत दिल से माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। असल तो आप लोग जिनको सुनना आए वही कारगुजारी सुनाएंगे और वही अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताएंगे कि दुनिया कितने वक्त की है और कितनी कीमती है और असल क्या है। असल तो अल्लाह का ताल्लुक़ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें ज़िंदगी बतलाई है उसी में नजात है, उसी में कामयाबी है। हम अक्सर व बेशतर बयानात के अंदर, बुज़ुर्गों के बयानात के अंदर, हज़रत मौलाना माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा काबिल उम्मत को यहाँ बुलाते रहते हैं और आप सब उससे इस्तिफ़ादा उठाते रहते हैं, लेकिन हमें एक एग्ज़ाम्पल मिला है और अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है कि उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। वो मैं ये समझता हूँ कि मेरी अहलिया मोहतरमा सना को आप देख कर समझ सकते हो कि जो ज़िंदगी के अंदर वो थी, जो एक नौजवान एक सोच में होता है, एक इरादा रखता है, हर एक नौजवान की ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर भी वो ख्वाहिशात है, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने नफ्स को रखा है कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, वो तीनों को पाने के लिए इंसान हर चीज़ को लगाने के लिए तैयार होता है, अपनी वक्त को, अपनी सलाहियत को। ना वो हलाल देख रहा होता है ना हराम देख रहा होता है, बस मिल जाए। बहुत कम लोगों को मिलती है, चाहे हलाल से हो चाहे हराम से हो। लेकिन इनका जो ये कैरियर था 17 साल ज़िंदगी का, वो उन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बान किया। ये तो अपनी ज़िंदगी का बतलाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या फ़ायदा हो, जो बातें मैं लेकर अपनी जगह लूँगा। पहली चीज़ तो ये हुई कि ताल्लुक़ मा अल्लाह के साथ, उनका अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ था, वो मैं ये देखता हूँ कि ये जो कुछ बोलती है मौला, वो अल्लाह ताला कबूल होता है। यानी वो जो कहती है कि ये अल्लाह से मांग रहे, चंद दिनों के बाद वो दुआएं कबूल हो जाती है। तो इससे मालूम ये पड़ा कि जो अल्लाह को ढूंढने निकलता है उसको अल्लाह मिल जाता है, चाहे कोई भी ज़माना हो, कोई भी वक्त हो, कैसा भी हो। इनको देख कर देख सकते हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है, टाइम है, ज़िंदगी है और अच्छा दीन का माहौल दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे दीनदार घरानों में पैदा किया, तो इसकी कदरदानी करें। यानी 1 साल 1.5 साल से जो आई हुई बंदी ये कर सकती है और अमाल की पाबंद हो सकती है। हत्ता कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जिस दिन हमने छोटा सा वलीमा रखा था सुन्नत की नीयत के साथ, चंद अहबाब मौजूद थे, तो शाम का वक्त था, जाहिर सी चीज़ है कि मेहमान आते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। उस दिन इनकी सूरह वाक़िया बहुत नहीं हुई है। हम लोग कुछ मसाइल में थे, मुझे कह रहे 2 दिन के बाद कहने लगे मैं अपने मामलात के ऊपर अल्लाह ताला मसला हल कर देगा। वाकई ऐसा हुआ, मसला हल कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने किताबों में पढ़ा, सुना, बुजुर्गों से सुना कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इज्जत डालता है। ऐसे बहुत से लोग देखे, लेकिन ये तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये खुद कहती है क्या दुनिया का ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। अफ्रीका के काले मुल्कों के अंदर जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, वो मैसेज कर रहे होते, DM कर रहे होते कि आप हमारे यहाँ हैं। आज पूरी दुनिया बुला रही है, ये सिर्फ और सिर्फ दीन की निस्बत पे है। तो इसका मतलब ये निकला कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत के अंदर गुजारें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला दीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुँचाया और बहुत खूबसूरत सा दीन है और बहुत आसान दीन है, उसके ऊपर हमारी ज़िंदगी को गुजारे। तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी बनेगी, आखिरत भी बनेगी और दुनिया के अंदर जन्नत के मज़े चखोगे। क्योंकि मैं इस बंदी को देखकर मुझे पता चलता है कि जन्नत के मज़े, कहते हैं ना कुछ लोग के जन्नत के मज़े आते हैं, और इस बंदी को देख के पता चलता है। तो अल्लाह हर एक के साथ कर सकता है। शर्त ये है कि हम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह की इताअत करने वाले और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. She wants to give message. Just listen it quietly and then enjoy the moment. Okay? I know you all are very excited. Just keep inside your excitement. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم درود پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو سب آرام سے میں ہوں یہاں پہ تو تھوڑے سے شانت ہو جائے اینڈ ہم سب اللہ سے دعا کریں کیونکہ یہ آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے پاس کچھ میسج پہنچ پائے میرے ذریعے آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگوں کو دیکھ کر میں کچھ یہاں سے سیکھتے نکلوں کیونکہ مرتے دم تک ہم صرف ایک دوسرے سے سیکھتے ہی رہتے ہیں. کوئی پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایٹ لیسٹ میں بیکاز آئی ایم اسپیکنگ اللہ مجھے بولنے کی صلاحیت دے اور جو میں کہتی ہوں اللہ آپ کے دلوں میں اتار دے کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. میں تو جو پڑھتی ہوں جو اپنے جو عمل میں لاتی ہوں میں بس وہ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. تو بس اللہ اس جمع ہونے کو مقبول کرے اور ہم سب کی زندگیوں میں جو ہم چاہتے ہیں اللہ رسول کو خوش کرنا اور ان کے حکموں کو فالو کرنا اللہ کے اور سنتوں کو فالو کرنا بس یہ ہمارے اندر آ جائے. باقی تو سب کی لائف الحمدللہ جیسی کہ ویسی چلتی رہتی ہے. اوبیسلی سب لوگوں نے آلریڈی جانتے ہیں کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے آتی ہوں بٹ اوبیسلی کیونکہ جب ہم مسلمان ہوتے مجھے یاد ہے جب میں نے جب 2019 کی بات کرتی ہوں میں تب سے تھوڑا اندر کا بہت چینجز آنے لگ گئے تھے اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ جب ہم بات کر رہے تھے نا اینڈ میں اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں بات کر رہی تھی تو میرا ایک دوست تھا ہم شوٹنگ کر رہے تھے غیر مسلم تھا تو انہوں نے بولا ارے یو نو تم مسلم ہو نا اس کے لیے ہمارا پرسپیکٹو مسلم کو لے کے الگ ہوتا ہے. تو کبھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ یو نو جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہم مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے اور میں ایکچولی جب میں 26-27 کے آس پاس آئی تھنک آج جو میں مسلمان ہوں نا آج میں بائی چوائس مسلمان ہوں. Not because I was born to a Muslim family, because I've understood that Islam is the religion. And اگر اللہ نے مجھے اتنا قبول کیا ہے ہم سب کو کہ ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں شکر دنیا کی ساری چیزوں کا شکر سیکنڈری ہے بٹ پہلا شکر کیا ہے کہ ہم ایمان والے کے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اللہ ہمارا ایمان باقی رکھے. کیونکہ جب میں بہت جگہوں پہ دیکھتی ہوں اور جب لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یار کیسے کر لیتے ہیں وہ کتنا ٹف ہے نا جب ہمارا کلچر الگ ہوتا ہے ٹریڈیشن الگ ہوتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے ایک نئی چیز میں آ جانا آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایزی. تو مجھے یہ لوگ بہت موٹیویشنل لگتے ہیں میں ان کو دیکھ کر سیکھتی ہوں کہ کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ کیونکہ اتنے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں اور آج تو دیکھا جائے تو ہم جیسے جو ایمان میں ہی آلریڈی ہے ایٹ لیسٹ نام سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنا کتنا ٹف لگتا ہے. ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے کبھی کوئی یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا نہیں ہمارے گھر کا یہ کلچر ہے یہ چلتا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن کیونکہ کسی نے دادا پردادا کرتے آ رہے تو ہم کو فالو کرنا ہے. تو آئی تھنک کچھ وقت کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ مجھے میرے گھر میں ٹریڈیشن فالو نہیں کرنا ہے مجھے وہ فالو کرنا ہے جو حدیث ثابت کرتی ہے اور اگر یہ اس سے ملتی نہیں ہے تو مجھے وہ چیز نہیں کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں کوئی اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا ہے. آج میں نے سوچا اور کل میں ایک دم پرفیکٹ ہو بھی سکتا ہے کل ایک دم پرفیکٹ ہو جاؤں لیکن پھر کچھ چھوٹے چھوٹے
फ्लॉज मेरी लाइफ में आए, तो ये चीज़ तो दुनिया में चलती ही रहनी है। हमें कोशिश करना है कि हम बस मेहनत करते रहे, उस चीज़ के पीछे भागते रहे। जाहिर सी बात है, जब मैंने चीज़ें छोड़ी और जब मैंने हिजाब लिया, बोलने वाले बहुत होते हैं, इनफैक्ट आपके खुद के भी होते हैं, और मतलब मुसलमान भी होते हैं। आप सोचते हो यार आप नहीं करते हो मत करो, पर एटलीस्ट बोलो तो मत, बिकॉज आप बोल के गुनाह में जा रहे हो। सो पीपल वर वेरी डाउटफुल जब मैंने हिजाब लिया कि अरे ये हिजाब में टिक पाएगी क्या, और इतने साल इतना फैशन किया है तो सर पे से स्कार्फ इसका होता है ना। और इनिशियली मुझे भी बहुत डर था, क्योंकि मैं जब शुरुआत मैंने किया तो मैंने सिर्फ स्कार्फ से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बस, आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी या क्या, मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं रहना है। बट मैं बहुत बयान सुनने लगे थे। कोविड ने मुझे बहुत हेल्प किया ईमान से और कनेक्ट होने के लिए। तो मैं कंटिन्यूस बयान सुनते गई और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 2 बयान ऐसे सुने जो मेरे दिल पे इतनी बुरी तरह से लग गए कि उसमें एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि जब औरत की मौत होती है, जब आदमी का जो जनाजा होता है उसे 3 कपड़े में बांधा जाता है, लेकिन औरत को 5 कपड़े में बांधा जाता है। और जब हम मर जाते हैं तो हमारी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं ना। कौन आपको देख के कुछ फील बिल्कुल आप गलत नजर से देख सकता है एक जनाजे को? बिल्कुल नहीं। तो उसमें उन्होंने इस तरीके से बयान किया, उन्होंने कहा कि औरत एक डेड बॉडी है, कोई गम की नहीं है, लेकिन तो भी उसका सर और जिस्म ढक कर उसे कब्र में डाला जाता है। तो उसमें उन्होंने इस तरीके का ब्यूटीफुल उन्होंने बोला कि दुनिया में मर्दों की और औरतों की गैरत मर चुकी होगी, लेकिन अल्लाह की गैरत अभी भी बाकी है। एंड वो चीज़ मेरे दिल पे इतनी बुरी लगी कि मैं दूसरे दिन उठ के मैंने कैप ले लिया और स्कार्फ ले लिया। मैंने कहा अब मैं अगर रही तो मेरी गैरत मर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें सुनना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चीज़ों को सुनना क्योंकि मुझे उस पर अमल करना अलग चीज़ है। मैं आपकी 10 घंटा भी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि हमें बस जाके सुनना है, बिकॉज अच्छा नए चेंज हुए हैं, जाके हम स्टोरी सुन लेते हैं, तो शायद मेरी बातें आपके दिल पे असर ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम नियत करें कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे इस इसमें शामिल हो रही हूँ, तो अल्लाह बस मेरे इस जाने को कबूल करे और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उससे पूरी करे। तो आई थिंक नियत करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो भले कुछ लोगों को वक्त लग जाए, पर नियत करो। मुझे इतने साल लग गए, मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी पूरी जवानी खत्म हो गई और मैंने इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और जब मैं लोगों को देखती हूँ, मैं कभी कभी अनस को भी कहती हूँ, मैंने कहा जब मैं अब ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ, मुझे अंदर ही अंदर इतना दुख होता है कि मैं इतना साल क्या कर रही थी। मैंने इतने साल पहले हिजाब क्यों नहीं लिया, मैंने इतने साल पहले अपने बाल क्यों नहीं ढाके, मैंने इतने साल पहले अपनी जिंदगी को सही रुख पे क्यों नहीं लाया, मैं क्यों वेट कर रही थी। और जब हम देखते हैं कि लोग आज की तारीख वैसे भी जिंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, बट जब कोविड आया और कोरोना आया तो एक खौफ तो दिल में बैठ ही गई। ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से है, ये ऐसी नहीं कि बस अपने आप आई और अपने आप चले गई। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि दुनिया की कोई ताकत आज आपको बचा नहीं सकती है। आज एक ऐसा आ गया कि हमें एक मेडिसिन लाने के लिए 1.5 साल लग गए, उसमें भी इतने लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे जो हमारे साथ थे। तो ये चीज़ से एक दिन में और खौफ बैठ गया कि व्हाट इफ आई डोंट वेक अप टुमारो, अगर मैं कल नहीं उठ पाई और अगर मैं इस हालत में गई तो क्या मैं उस हालत में हूँ कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेंगे। हम प्रॉब्लम क्या है ना हमारे अंदर, हम सिर्फ ये सोचते अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है और बस अल्लाह माफ़ी करने वाला है, अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल। हम सिर्फ उसमें ही अटक गए, बट जब दूसरी चीज़ें आती हैं हम क्यों नहीं सोचते। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जाने लगी कि बेशक अल्लाह रहीम है और अल्लाह करीम है और अल्लाह माफ़ करने वाला है, बट मैं अल्लाह को इतना नाराज़ क्यों करूँ इस दुनिया में, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ मरने के बाद कि मुझे कब्र में आसानी दे और मुझे जन्नत नसीब अता फरमाए। तो भैया जो लोग इस दुनिया में कुर्बानी दे रहे थे उनका क्या? अब आप सब लोग जो बैठे हो और कुर्बानियाँ दे रहे हो, जो लोग मेरे हिसाब से बचपन से हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, इतनी परहेजगी करते हैं, और मैं अगर उनकी एकदम ऑपोजिट हूँ, तो हम दोनों को इक्वल करना तो नाइंसाफी हो गई ना।
اور اللہ تو انصاف پرست ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ اس جانور کو بھی اٹھائے گا جس کی سر پہ سنگ نہیں تھا اور جس کے پاس سنگ تھا اسے مارا, اور اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں سنگ دیا اور اپنا انتقام لو. تو جب اللہ ان کے ساتھ انصاف کریں گے تو ہمارے ساتھ ناانصافی کیسے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں سوچ سکتے آج کی دنیا میں, بیکاز ہم پڑھ لکھ لیتے ہیں. یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا ہر عورت کا رائٹس ہے, بے شک ہے, اور اسلام نے تو وہ رائٹس دیا ہے. اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ لیکن آج لبرل زمانے میں اسے چینج کر دیا گیا. اسے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام میں پڑھائی نہیں, جبکہ بالکل غلط ہے. وومن رائٹس اگر آپ دیکھو گے تو اسلام نے ہی دیا ہے, چاہے وہ آپ کی پراپرٹی میں حصہ ہو, چاہے اگر آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو دوسری شادی کا اپارچونیٹی ہو, اگر ہمارے انفارچونیٹلی اگر ہمارے ہسبینڈ نہیں ہے تو ہم خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم حیض میں ہیں تو بھی ہم گھر میں شریک کوئی بھی کام کر سکتے, نماز کے روم میں جا سکتے. جو چھوٹے سے ریگولیشن ہیں ہمیں وہ فالو کرنے ہیں, بس کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی ہے, وہ نہیں اٹھانی, بٹ اس کے علاوہ تو ہر رائٹ دیا گیا ہے. تو یہ رائٹ کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں اسکول کالجز میں نہیں دیا. تو آج لوگ لبرل بن کے گھوم رہے ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے نہیں دیا. تو ہمیں ایک اتنا اچھا ریلیجن ملا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی عورتوں کا رائٹ اتنا زیادہ ہے, تو ہمیں بالکل بھی, ہم بے شک پڑھائی کریں پر اس دنیا کی اس میں نہ گھوم جائے کہ وہ ہمیں وومن, ہم کو ہماری آزادی چاہیے, ہماری مرضی. آج کل ایسے ایسے نعرے ہیں کہ بولنے بھی شرم آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ آپ اس کے بارے میں بات کیسے کریں. بٹ ظاہر سی بات ہے آپ سب الحمدللہ دونوں طریقے کی ایجوکیشن لے رہے ہیں اور ہم نے بھی لی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں دیٹ جو ہمیں ایجوکیشن ملی ہے نا ہم اسے صحیح رخ پہ لے کے جائیں, بے شک جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو, دین کا اور دنیا کا دونوں کا. کیونکہ اگر انسان کا صرف دنیا کا فائدہ ہو گیا اور دین زیرو رہ گیا تو یہ تو دنیا کا تو جو بھی پڑھائی لکھائی ہے یہ ہمارے قبر میں پانی نہیں ہے, یہ تو ختم ہو جانی ہے. ہمارے ساتھ صرف ہمارے عمل چلیں گے. دنیا کا نالج ہونا ضروری ہے, بیکاز آبویسلی اگر اللہ چاہتے کہ ہمارے پاس دنیا کا نالج نہیں ہو تو ہمیں بھی کوئی کتا بلی چوہا بنا کے بھیجنا, ہمیں انسان کیوں بنایا ہے اور ہمیں اتنے سیلس کیوں دیے گئے, ہمیں اتنا انٹیلیجنٹ کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے بنایا کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. اینڈ اسی طریقے سے دنیا میں اتنا پروگریس ہوا ہے. جو لوگ پہلے گھوڑے پہ اور اتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے, آج پلین بن گیا, آج فون بن گیا, لائٹس بن گئی, مائک بن گیا کہ میں یہاں سے اتنے دور تک کا لوگوں سے بات کر سکتی. جو پہلے لوگ صرف اپنی آواز چلا کر بات کرتے تھے. تو یہ ساری جو ایڈوانسمنٹ ہے اللہ نے ہمیں اس کی ایک طریقے سے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اس چیز کو کر سکیں. تو ہمیں اسے رائٹ طریقے سے لینا چاہیے اور اپنے ایجوکیشن کو بھی صحیح رخ پہ لے کے جائیں. ہم کوشش کریں کہ ہم بس خود کے لیے خیر ہو, دنیا کے لیے خیر ہو, ہم جس سے جڑے ان کے لیے خیر ہو. سب سے امپورٹنٹ میں ہمیشہ یہی چیز جو میں سیکھتی ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں, کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت مسکین جیسے وکیل ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا ہو سکتی ہے, کمزور ہو سکتی ہے, بولے ہاں ہو سکتی ہے, ڈرپوک ہو سکتی ہے, بولے ہو سکتی ہے, بولے پر جھوٹ بول سکتی, بولے نہیں میری امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. تو جب انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا ہے تو ہم تو ان کے ذریعے ہماری مغفرت ہونے والی ہے. آج ہمارا جو وجود ہے ان کی وجہ سے ہی ہے, ورنہ پرانی قوموں کا جو حال ہوا تھا, جس طریقے سے ہم آج کی تاریخ میں جو چل رہا ہے اس دنیا میں, مجھے نہیں لگتا یہ اتنا لمبا چل پاتا اور ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے رہ پاتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم, آپ لوگ ماشاء اللہ آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو, میں نے تو بس ابھی شروع کیا ہے چیزیں سیکھنا اور اسے جتنا ہو سکے اپنے اندر لانا, اپنے گھر والوں پہ, جو میرا گھر ہے, میری اب یہاں پہ تو ماشاء اللہ سے سب میرے ساس سسر ہر کوئی دینی ہے, تو ان سے تو سیکھنے ملتا ہے. تو میں جو ان سے سیکھتی ہوں میں وہ اپنے گھر جاتی ہوں تو گھر لے کر جاتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ میری امی, میرے ابو, میرے کزنس جو بھی ہے وہ اس چیز کو سمجھیں. اینڈ آئی تھنک جب میں نے سب سے پہلے میں نے حجاب لیا اور میں سوچا کہ اب میری ممی آف کورس نہیں لیتی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ممی نہیں لیتی تو میں نہیں لیتی تھی. پھر جب میں نے لینا شروع کیا تو میں نے میری ممی کو تو ایونچولی نہیں بولا, پر میں نے ریئلائز کیا کہ بہت ساری چیزیں نسلوں سے لینا دینا ہے, اینڈ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دینا ہمیشہ سے. اور میں سوچتی تھی جب میں ہی نیک نہیں ہوں تو میرا اولاد کہاں سے نیک ہوگی, کیونکہ آج کی ہماری سوچ ہے ہیومینٹی تو ارریسپیکٹو ہے, انسانیت تو
होना ही चाहिए। और वो इंसानियत कब आएगी? जब दिल का नॉलेज होगा ना, जब आप अल्लाह से खौफ करोगे और क़यामत और हशर के बारे में सोचोगे तो ही तो आप अच्छे इंसान बनोगे, वरना तो इंसानियत तो ऐसे बिल्कुल नहीं आनी है। तो मेरा ये सोच था कि मैंने इसलिए हिजाब नहीं लेती, मेरी मम्मी नहीं लेती थी, तो मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को हिजाब में डाला। अब माशाल्लाह से मेरी मम्मी भी हमेशा हेड स्कार्फ में ही रहती है, वो इतना बाहर निकलते नहीं बिकॉज थोड़े से वीक है, लेकिन एटलीस्ट अब ऐसा हो गया कि घर में पाव वाला आए, कोई भी आए, आप बिना स्कार्फ के जाओगे नहीं। तो मैंने जो अपने अंदर चेंजेस लाए, मैं अपने मम्मी पे वर्क करते गए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अच्छी औलाद वही होती ना। हम तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत का ऊंचा मकाम नसीब कर। पर ये इतना आसान थोड़ी ना है कि मैंने दुआ कर ली हो गया। इसके लिए हमें मदद की जरूरत है, इसके लिए कुर्बानियों की जरूरत है। हमें कुर्बानी देनी नहीं, हमें से पका पकाया हलवा कहते हैं ना खाना होता है हमारे अंदर। अब हम लेजी हो गए, हमें चाहिए सब कुछ पर मेहनत कोई चीज की नहीं करनी है। तो एक चीज हमें रियलाइज होती है और हम सीखते हैं कि बिना मेहनत और बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता है। आज अगर आप दीन को हटा लो, आप नॉर्मल लाइफ अपनी सोचो, आप लोग सुबह में नींद की कुर्बानी देते हो तभी तो स्कूल आ पाते हो, तभी तो मदरसे आ पाते हो। आपके डैड कुर्बानी देते हैं तभी तो वो बेचारे सुबह उठ के बाहर जाते, काम करते, पैसे लाते हैं। आपकी अम्मी कुर्बानी देती है तभी तो वो पूरा दिन किचन में आपके लिए खाना बनाते रहती है ताकि मेरे बच्चे पढ़ सके। थक जाती है, मेरी अम्मी को देखती बहुत पैर दुखते हैं उनके और थकान हो जाती है, इतने सुबह उठते हैं, आखिरी सोते हैं। हमारे घर में हमारी अम्मी ऐसी होती है ना, सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी सोती है, तो कुर्बानी तो है। तो बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। तो जब दुनियावी चीज बिना कुर्बानी के नहीं मिलती तो दीन कैसे मिलेगा बिना कुर्बानी के? अब तो मुहर्रम चल रहा था एंड ऑफ कोर्स चल रहा है, बट जो शुरुआत का जो दिन था और जो करबला में जो हुआ था, जब हम सुनते हैं वो भी तो कुर्बानी का नतीजा है ना, वरना कहाँ मिलता। आप अगर वो स्टोरी को सुने तो इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें तो पहले ही बशारत दी गई थी कि वो तो जन्नती है। वो नहीं भी पढ़ते तो भी वो जन्नत नहीं जाते, लेकिन तो भी उन्होंने पढ़ के हमें पैगाम क्या दिया कि कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। नमाज नहीं छोड़नी मतलब ईमान नहीं छोड़ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सिर्फ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट ना करें, पर इसके पीछे क्या क्या कुर्बानियां दी गई है वो सीखे, बिकॉज एक दिन हम सबको उनका सामना करना है ना। आप खुद सोचिए, अगर आप सही तरीके से चीजें फॉलो नहीं करेंगे, आपको लगता है क़यामत के दिन जब वो लोग खड़े होंगे हमारे सामने, हम उन्हें कुछ जवाब दे पाएंगे? तो उनकी तो कुर्बानी वेस्ट हुई ना। अगर आज मेरे घर में कोई कुर्बानी दे दे, चाहे एग्जाम्पल मैंने स्कूल बना लिया, अब किसी ने कुर्बानी दे दिया मेरे घर से और कोई शहीद हो गया, और मैं देख रही हूँ कि यार ये स्कूल बराबर चल ही नहीं रहा है, लोग इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे, मैंने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया है, लेकिन ये लोग इस स्कूल की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो जी जलेगा ना यार। मैंने तो अपने घर वालों को खो दिया इसके चक्कर में, आप लोगों के चक्कर में, ताकि आपको इल्म मिले, लेकिन आपने तो इसका सर्कस बना दिया, कोई नहीं सोचेगा। तो वही चीज तो हमारे इस्लाम में भी है कि उन्होंने पूरे अहले बैत की कुर्बानी दे दी सिर्फ कि हमको दीन मिल सके, कि हमको जन्नत मिल सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सैक्रिफाइसेस को जाने ना दें। और हम जितना आज हम जवान हैं, कहते हैं ना जवानी की हर चीज ज्यादा कबूल होती है इनटू 10 टाइम्स, क्योंकि जवानी में नफ्स होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, हर चीज होती है। तो जब इंसान कहता है ना, जो मुझे अनस ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि जब मैंने तौबा की थी, उन्होंने कहा था कि जो जवानी की तौबा होती है ना, वो हमारे आसपास जितने कब्रिस्तान है वहां से 40 साल का आजाब उठ जाता है। और मुझे याद आया मेरे नाना नानी उसमें है, मेरे दादा दादी उसमें है, मेरे खाला खालू उसमें है, मेरे मामा उसमें है, और कितने लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। और मेरी इस चीज से सिर्फ मुझे फायदा नहीं, पर जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उनको फायदा होने वाला है। तो मेरी सोच ही बदल गई। मैं अभी भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह बेशक जब हम पढ़े 40 साल का आपने कहा है, बट प्लीज हो सके तो हमेशा के लिए इससे आजाद उठा लेना, क्योंकि मैं मेरे नाना नानी दादा दादी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मतलब मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे नाना नानी होते और ये चीजें देख पाते। तो
इन्होंने हमारे पीछे बचपन में बहुत मेहनत की है, बट द प्रॉब्लम इज ना कि हमें पता ही नहीं है कि आखिरत में, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, एटलीस्ट मैं अपनी बात करती हूँ कि नॉलेज ही नहीं लिया हमने, दीन को बहुत फ्री है, इजी है, उसे ले लिया, पर जब अब पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है कि इससे कितनी चीजें जुड़ी है और हम अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं फिट होना है। होता है ना, अब मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे दोस्तों में फिट होना है, मैं हिजाब पहनूंगी तो मैं कितनी अजीब लगूंगी ना, सब लोग तो नॉर्मल ड्रेस में होंगे, अब मैं कैसी लगूंगी ना, लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी। मैं लोगों से सुनती हूँ आज भी, और अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें ये करना होगा, हमें वहाँ जाना है तो उनके जैसे करना होगा, है ना। नो, मैं इस चीज को इतना स्ट्रांगली फॉलो करूंगी और इतना ब्यूटीफुल फॉलो करूंगी कि जब लोग मुझे देखें तो उन्हें लगे कि उन्हें मेरे जैसा बनना है, ना कि मुझे उनके जैसा बनना पड़े। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दीन को ऐसा लेकर चले और हम अपने अखलाक को ऐसे लेकर चले कि जब लोग आपको देखें ना तो आप आउट ऑफ द बॉक्स फील ना करें, लोग फील करें कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है या फलाना कितना अच्छा लड़का है, हमें इन जैसा बनना है। हमें कोशिश करनी है लोगों को अच्छा बनाने, हमारी तरफ ला लेना कि हम उनकी तरफ चले जाए, क्योंकि हम जिनके लिए जितना अच्छा सोचेंगे हमारी भी आखिरत उनके बेहतर हो जाती है और हमारे जरिए किसी और की आखिरत बेहतर हो जाती है। अब वो इंसान इस दुनिया में तो समझ नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि इस्लाम देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट फेथ, करेक्ट। वी हैव नॉट सीन एनीवन जो जन्नत के वादे हैं और जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमारी बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं फॉलो करने के, हमने सिर्फ पढ़ा है, किसी ने देखा नहीं है, कोई फिजिकल सबूत तो हमारे पास नहीं है। तो इस्लाम इज ऑल अबाउट फेथ, बिलीविंग इन व्हाट अल्लाह सेड डिस्पाइट इट नॉट बीइंग विजिबल। आपने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं है, अब मुझे कोई बोलेगा आपको ये घड़ी पे 50,000 खर्च करने हाइपोथेटिकली, तो मैं तो पहले घड़ी देखूंगी ना, भैया इतना 50,000 रुपया खर्चा करने से पहले मैं घड़ी तो देखूंगी ना। आज की तारीख में जब आप कोई सौदा करो ना, आप हर चीज देखना चाहते हो बिना पहले पैसे दिए, पहले कि मुझे इसके बदले क्या मिल रहा है। सो इस्लाम में इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट कि आपको बहुत थोड़ी सी चीज देनी है, इन्वेस्टमेंट इतना है ही नहीं, यू नो, देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। मैं आज जब मैं दोस्तों से बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि मैं पहले ऐसे फील करती थी कि आई फील लेस, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम आया था, पर जो छोटा छोटा शुरुआत में आया था, यू नो व्हेन 2018 आई वांटेड टू लीव एवरीथिंग, बट 2 साल में लेट हो गई, बट 2018 में जब ये ख्याल आया था तो तब कहते हैं ना, जब आप इंसान अपने आप को बहुत सारे हराम के बीच में घेरा हुआ होता है ना, तो उसे हलाल भी हराम लगता है। एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत टफ हो जाएगा, मैं कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव ट्रैवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड सो मेनी टाइम्स, सेम कंट्रीज, be it US, be it Europe, you know, be it all the Asian countries. So I have been everywhere, I have seen everything, I have worn best of the clothes. You know, कोई भी डिजाइनर का नाम ले लो, हम लोग पहना है, जो कपड़े लिटरली 8-8, 10-10 लाख के कपड़े होते थे, ज्वेलरी 20-20 लाख की हम पहनते थे। यू नो, ऑफ कोर्स, यू नो, आप हर दुनिया का जो इंसान सोचता है ना, वो हर चीज एटलीस्ट मैंने की है अपने प्रोफेशन में। यू नो, 5 स्टार होटल में रहना, स्ट्रीट में रहना, जो मना है खाना, 1 रुपया नहीं देना है हमें, सब कुछ फ्री में होता था। प्लस डिजाइनर्स आपके पास आ रहे कि हमारे ड्रेस कर लो, हमारे ड्रेस, यू नो, ऑफ कोर्स जो भी चीजें हैं, तो हर चीज मुझे अपनी जिंदगी में मिली है। बट स्टिल यू नो, एक इंसान को होता है ना, मुझे हमेशा लगता था सब है, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी वो खुशी खत्म हो जाती थी, वो रहती नहीं थी। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं आज यहाँ पे अपनी कोई मूवी प्रमोट करने आती, जो मैं पहले करने जाती थी कॉलेजेस में और हर जगह तक, लाइक आई थिंक ऑफ इट, आई रिग्रेट, आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी अपनी लाइफ में। तो जब मैं जाके बात करूं तो मुझे खुशी होती थी, वाओ इतने सारे लोग हैं, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी, सारे मेरे फैंस हैं। बट यहाँ से गाड़ी में बैठने के बाद वो कहते हैं ना, पेप्सी खोलते बराबर जुप निकलता है कि पूरा ठंडा, फिर किसी को नहीं पीना होता है वो पेप्सी, वो मेरा हाल था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये खुशी रुक क्यों नहीं रही है मेरी जिंदगी में। एंड 2019 वाज वर्स, पूरा 2019 I was very active on social media, doing every shit possible, which I truly regret. I don't know how many Salatul Tawbah I have read that Allah forgets about it. You know, Allah like please erase it, please erase it. मैं याद नहीं रखना चाहती हूँ, आप भी याद ना रखें. And inshallah I will never ever do it. That is my goal. You know, that is my resolution. But at that point of time, जब मैं 2019 was a phase, it was
वेरी डिफरेंट। जो मैं दिखती थी वो मैं होती नहीं थी, और जो मैं होती थी वो मैं दिखा नहीं पाती थी। तो मैं उस साल इतने कश्मकश में रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे सिर्फ फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मुझे लाइक्स मिल रहा है, मैं पॉपुलर हो रही हूँ, मुझे इवेंट्स मिल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं। ऑफकोर्स यू नो एक रिबन कटिंग की आपको 5-5, 8-8 लाख मिलते थे, मतलब मैं 10-15 मिनट जाती थी और मुझे पैसे मिल जाते थे। एंड आई वाज लाइक ये सब मिल रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं जब लोगों के पहले बयान सुनती थी ना, मैं कहती थी ऐसा हो सकता है कि यार इंसान को इतना पैसा मिल रहा है, इतनी दौलत शौहरत मिल रही है, पागल इंसान कह रहा है मैं खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था भाई, और क्या चाहिए मुझे दे दे। होता है ना अपनी मस्ती में घर में बोलते हैं, दोस्तों को बोलते क्यों खुश नहीं था भाई, सब कुछ तो है, दुख की है ही क्या इसमें बात। बट ये जो खालीपन है ना, ये वही समझेगा जो जिसका कनेक्शन अल्लाह के साथ। और आज जब मैं इस तरफ आ गई ना, मैं अब समझ पा रही हूँ कि वो चीजें मुझे क्यों खुश नहीं कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में कुछ और लिखा था और 2020 में वो चीज होनी थी। एंड आई थिंक शायद 2018 में हो जाती, शायद स्टेबल नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है। बट एटलीस्ट 2020 में अल्लाह ने मेरा माइंड इतना स्टेबल कर दिया, इतना स्टेबल कर दिया कि नाउ नथिंग कैन चेंज मी इंशाल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ ही करती हूँ कि इस्तिकामत दे, और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह जैसे हिदायत वाली जिंदगी, बस मौत भी हिदायत पे हो, क्योंकि मौत तक का कोई भरोसा नहीं कि इंसान कैसे मिसलीड हो जाए और कहाँ पहुँच जाए। तो एक डर लगा रहता है ईमान की हिफाजती का। इसलिए मैं हमेशा जब नमाज पढ़ती हूँ मैं दुआ करती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, है दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। तो ये मेरे अंदर एक डर है, एक खौफ है, और आई थिंक अल्लाह बस इसे बाकी रखे हमेशा कि या अल्लाह आज ईमान लेकर चला गया तो मैं तो एक लिपस्टिक नहीं संभाल के रख सकती हूँ, एक कान का संभाल के नहीं रख सकती, मैं ईमान क्या संभाल के रखूंगी। मेरे अंदर सलाहियत नहीं है इस चीज को संभाल के रखने के लिए, पर ये मुझे चाहिए। आप दुनिया की बाकी चीज इसके बाटर में आप ले लो, पर ये मेरी सलामती के लिए, ये ईमान मेरा सलामत रखो। तो आई थिंक ये दुआ हम सबको कोशिश करें आप लोग के मांगे, क्योंकि हर चीज मांगने से ही मिलती है और देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, बस जरिए बदल जाते हैं। कभी इंसानों के कभी आपको दोस्तों की थ्रू कुछ मिल जाता है, कभी मेरे जैसे छोटे मोटे स्पीकर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, कभी आपके टीचर्स के थ्रू मिल जाएगा, कभी माँ बाप के थ्रू मिल जाएगा, पर देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और यही चीज ने मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि जब मैं पहले सोचती थी ना, हम पढ़ते थे आई यूज्ड टू रीड अल्लाह इज द प्रोवाइडर, अल्लाह इज द प्रोवाइडर, अल्लाह इज द प्रोवाइडर, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। बट जब मैंने उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड ऐड किया और उसने मेरी जिंदगी बदली, and that was only Allah is the only provider, there is nobody except Allah। जब मैंने only लगा दिया ना, तो वो चीज मेरे अंदर एकदम बैठ गई कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आपकी नसीब में जो लिखा है, जो होना है, वो तो होती ही रहेगा। अब अल्लाह ने अगर मेरी जिंदगी में शोहरत और दौलत लिखी है तो वो लिख दी है, अब ये मुझे मिलनी है। अब इसे हासिल करने के लिए या तो मैं हलाल तरीके से आऊँ या तो हराम, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने हराम तरीका अपना लिया विदाउट इवन नोइंग इट। एक्चुअली शैतान ना आपको हराम पे ऐसे ही लेके जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अलर्ट नहीं है ना, तो हम कभी भी ऐसे जुग से स्लाइड होकर चले जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा कोई भी चीज हम करते हैं ना, तो कोशिश करें कि कहीं शैतान हमें इसे सजा धजा कर तो नहीं बता रहा है कि सही चीज है, क्योंकि हम यंग है, हम आज थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री है, हम ट्रैवल करते हैं। जैसे आपको स्कूल आना जाना, बच्चियां अकेले फ्रेंड्स के साथ आती है। अब आप किससे बात कर लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिसके साथ दोस्ती रखते हो, जिनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, उनका कनेक्शन अल्लाह से नहीं है, तो वो आपका कनेक्शन भी अल्लाह से होने नहीं देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इंडिविजुअली अपना कनेक्शन इतना अच्छा बनाए अल्लाह से कि जब हम किसी के साथ रहे ना, तो हम उससे अल्लाह रसूल की बातें करें, ताकि उसके दिल में भी अल्लाह की बातें बैठ जाए और हम जरिया बने उसका। क्योंकि आज हम ऐसे तो है नहीं कि 24 घंटा मुसल्ले पे रहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता हम कितनी इबादत कर रहे हैं, उसमें से कितनी कबूल है। करते तो हम बहुत है, लेकिन अब किसे पता क्या कबूल है, होती भी है कुछ की नहीं। तो हमें इस चीज की हमेशा एक फिक्र रखनी चाहिए कि मैं कर तो रही हूँ, पर मुझे नहीं पता है कबूल होने वाली है कि नहीं, मैं और ज्यादा क्या करूँ, मैं और ज्यादा क्या करूँ। कुछ लोग मुझे मिलते ना, कहते हैं भले मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की मेरी पूरी नमाज होती है। एंड समटाइम्स आई फील लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना एक अच्छी इंसान हूँ। आई नो यू शुड बी हैप्पी ऑफ कोर्स कि आप नमाज 5 टाइम पढ़ती है, बट आपको सब फॉलो करना है भाई, ऐसे कोई ना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, बाकी हिजाब नहीं पढ़ती, नो प्रॉब्लम, बट मैं 5 वक्त की नमाज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वाज लाइक
جائے گا سوائے گناہوں میں ڈال کے. اور اس کا جو عذاب ہے اٹ از سو ٹف کہ مطلب جب میں سنتی ہوں نا کسی بال نہیں ڈھکنے کا عذاب کیا ہے, میں نے کہا یہی میں نہیں سہ پاؤں گی, باقی تو چھوڑ ہی دو. یہی اتنا خطرناک عذاب ہے کہ باقی کے عذاب میں اس سے اور خطرناک کیا ہو سکتا ہے. اس سے جب ہم نے سنا ہے نا کہ سب سے چھوٹا عذاب اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا ہے کیا, گرم گرم لوہے کی چپل پہنو گے اور دماغ ابلتا رہے گا, یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے. اور میں گرم پتیلے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہوں, تو میں وہ عذاب کیسے لے پاؤں گی. تو آپ کو سب سے پہلے سوچنا ہے کیا آپ یہ عذاب لے سکتے, کیا آپ کے اندر طاقت ہے. آپ اسمارٹ نہ بنے کہ جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی. ہم ہوتا ہے نا جلدی جب ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھیا میرا معاملہ میرا ہے, قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے, عذاب میں میرا لوں گی, تم کیوں اس کی فکر کر رہے ہو. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو آپ کی دین کی فکر کرتا ہے. آج کی تاریخ میں اگر میں کوئی بزنس کروں نا, میں شاید کسی سے شیئر نہیں کروں. کیا میں اتنا پیسہ کماتی ہوں یہ بزنس میں ایسے کیوں بتاؤں, میں کیوں شیئر کروں, مجھے اکیلے کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا یہ دنیا کی چیز میں ہم یہ سوچتے ہیں, لیکن جب دین آتا ہے آپ دیکھو نا کیسی بھی بہن ہو, ایروگینٹ ہو, سب سے بات نہیں کرنے والی ہو, کوئی بھی نیچر کی ہو, لیکن وہ دعوت کا کام کرے گی. تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے, اس سے ہمیں ایگزامپل کیا ملتا ہے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس میں انسان نا اپنی دشمنی دوستی یاری سب بھول جاتا ہے. وہ سامنے والے کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ یار ہم ایک بار اس دنیا سے چلے گئے پھر تم اپنے اپنے قبر پہ ہیں, لیکن اگر ہم کسی کی آخرت بچانے کا حصہ بن سکتے, گارنٹی نہیں ہے, میں آپ کو کچھ بول رہی ہوں, گارنٹی نہیں ہے کہ میرے سننے سے مجھے, پر یہ تو قرآن حدیث میں ہے نا, یہ میں نے تو نہیں لکھا ہے. تو میں نے پڑھا, میں نے فالو کیا, میں نے کوشش کیا میں وہ فارورڈ کروں, کیونکہ یگسٹرز کا آج کا مائنڈ سیٹ از ویری ڈفرنٹ اینڈ ٹو انفلوئنس یگسٹرز از بیکم سو ڈیفیکلٹ. میں نے کہا سب کچھ چھوڑ دو, مسلمانوں کو بھی بولنا کہ اسلام فالو کرو, کتنا ٹف ہے. انسان دعوت کو بڑھا کر کہاں لے کر جائے جب ہم ہی اتنے غافل ہیں ان چیزوں سے. سو ٹوڈے ورکنگ آن آور سیلف از ویری ویری امپورٹنٹ. سو بس ہم کوشش کریں کہ جو ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے, دیکھو کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم کچھ غلط کرتے ہیں. اگر آج یہاں پہ اسکول میں آپ کچھ غلط کرو تو آپ کو ٹیچرس پکڑ لیں گے, لیکن جب آپ اللہ کی نظر میں کچھ غلط کرو تو اللہ کی نظر میں جب آپ کچھ غلط کرو تو اللہ آپ کو موقع دیتا ہے, اللہ آپ کو بار بار موقع دیتا ہے, بار بار موقع دیتا ہے. اینڈ یو نو جب میں آج نماز پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں نا یار میں اتنا روتی ہوں نا, اللہ آپ نے مجھے کتنا موقع دیا, کتنا موقع دیا. میں اس کا 1% بھی کسی انسان کو نہیں دے سکتی, لیکن آپ نے مجھے کتنا موقع پہ موقع, موقع پہ موقع, موقع پہ موقع, موقع پہ موقع دیتے ہوئے. تو ہم بس کوشش کریں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ بھیا آپ ہر چیز اپنے آپ سے کرے, سنبھل کے کرے. توبہ کا دروازہ اللہ تو کہتا ہے مرتے دم تک کھلا ہے, لیکن ہم مرنے کا پھر کیوں کریں. ساری چیزیں انجوائے کر لے جوانی میں, اور پھر جب بڑھاپا ہے تو اللہ اللہ, یہ نا ہمارا سسٹم. جیسے بڑھاپا ہے ہاتھ میں تسبیح, سر پہ دوپٹہ, مسلح, بس. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کو جو ہماری عروج ہے نا جوانی کی, اس میں عبادت کریں, کیونکہ اس وقت آپ کو زیادہ ثواب ہے, کیونکہ آپ کے پاس جوانی ہے, ہیلتھ ہے, بیوٹی ہے, نفس ہے, ہر وہ چیز ہے اس دنیا میں آپ کو گمراہ کرنے کی, لیکن آپ اس سب کے اوپر حاوی ہو کر اللہ کو فالو کرتے ہو. سوچو آپ کے لیے کتنا, اوپر سے فرشتے اللہ کتنا خوش ہوتے ہوئے گے آپ لوگوں کو دیکھ کر. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ بس جو اصل ذات ہے نا ہمیں اسے ہی خوش کرنا ہے. آج آپ میرے ساتھ کتنا بھی اچھا رہو, کل کو ایگزامپل میں یاد سے کسی کو نہیں بات نہیں کرتی, اس کی دل میں ابھی 1 سیکنڈ میں گر جاؤں گی. تو انسان ہے ہی ویسا, آج آپ سے محبت کرتا ہے کل کسی اور سے کرے گا, آج آپ کی عزت کرتا ہے کل کو لکھا یار وہ آئی تھی بٹ بہت ایٹیٹیوڈ اٹھایا, اس کو مطلب کیا ایکسنٹ مار رہی تھی وہ, یو نو یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی. تو یو نو یہ ایسی ہے. تو انسان, آپ انسان کے لیے کتنا بھی کر لو, وہ ہمیشہ انسیٹسفائڈ سول ہے. آپ دھول بھی نکال کے دیتے تو پانی لے. تو بے شک آپ اپنا جو تعلق ہے نا اللہ سے بڑھاؤ. اور میں نے یہ دیکھا ہے جب میرا ریلیشن شپ اللہ سے بہتر ہوا نا, اللہ نے میرا ریلیشن شپ مخلوق کے ساتھ بھی بہتر کر دیا. کون سوچ سکتا تھا کہ آج میں اس جگہ ادھر آؤں گی اور اسلام کی باتیں کروں گی. تو یہ چیز اللہ کی دی ہوئی گفٹ ہے, اور اس گفٹ کو مجھے کوئی انسانی طاقت کبھی نہیں دے پاتی. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم بس یو نو چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں, جو پڑھتے ہیں, جو سیکھتے ہیں. ہمیں اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے, الحمدللہ اچھی ہیلتھ دی ہے, ایجوکیشن ملنے کا ایک اپارچونیٹی. آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاؤ, بیچارہ کو الحمد بھی نہیں آتا ہے, تو یو نو ان کو دیکھ کے برا لگتا ہے کہ مطلب کون سکھائے انہیں, کوئی یہاں پہ ٹیچر رکھ دو پلیز,
एटलीस्ट ताकि एटलीस्ट ये नमाज तो पढ़ सके। जब आप देखते हो तो उनको बेचारों को 2 सूरत भी नहीं आती है, तो मैं सोचती हूँ लोग नमाज कैसे पढ़ते होंगे बेचारे, कोई है ही नहीं। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमको एक ऐसा माहौल मिला है कि हमें एटलीस्ट इतना बेसिक तो आता है। लोग कहते हैं ना हज इतना एक्सपेंसिव है, हज इतना एक्सपेंसिव है, मैं हमेशा मेरे नजदीक वालों का हज महंगा है यार, नमाज तो फुकट की है, वो तो पढ़ लो। जो चीज फ्री है वो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, जो चीज नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो। अल्लाह हम सबके लिए हज उम्रा हमारे नसीब में लाए और हम सबको मौका मिले अल्लाह के घर पे जाने का, लेकिन जो वहाँ जाने का असबाब है उसे इख्तियार करें और बस कोशिश करें हम अच्छे इंसान बने, सबसे मोहब्बत करें, सबसे इम्पोर्टेंट सच बोले, लोगों को साथ लेकर चले, अपने घर वालों को साथ लेकर चले, अपने दोस्तों को साथ लेकर चले, क्योंकि बहुत छोटी सी जिंदगी है मेरी बहनों, बहुत छोटी सी। आज आप जवान हो, आपको अटेंशन मिलेगा, कुछ साल बाद जब आप थोड़े बूढ़े हो जाओगे ना आपको कोई अटेंशन नहीं देगा। बूढ़े तो बहुत दूर की बात है, बेबी हो गया और आप मोटे रह गए तो आपका चांस उधर ही खत्म, ठीक है। बहुत कम लोग वापस से स्लिम एंड ट्रिम हो जाते हैं, बट गारंटी नहीं है सबकी। तो आप कोशिश करें कि कहते हैं जैसे हुस्न की कभी तकब्बुर ना करें, ये ऐसी पिघल जाती है और उसके लिए बुढ़ापे की जरूरत नहीं है। मैंने जवान 20-22 साल के बच्चों को देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया, बेचारों का एक पैर चला गया, एक हाथ, तो यू नेवर नो कि आपका जो फुल चलता हुआ बॉडी है कब रुक जाए। जब मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ ना नमाज पढ़ते हुए, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, कुर्सी का सहारा लेते हैं ना, तो भले वो नमाज पढ़ते तो अंदर ही अंदर लगता है कि या अल्लाह, ये भी गारंटी नहीं है कि आगे कितने सालों में मैं रुकू में झुक पाऊंगी और सजदे में झुक पाऊंगी कि नहीं। तो आज जितना मौका मिला रुकू और सजदा कर ले, क्योंकि एक वक्त की बात सिर्फ वो इशारों से होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हमें मिली है ना, एक गुड हेल्थ, हमारा बॉडी कहते हैं अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब तक हमारी अच्छी तंदुरुस्ती है, अच्छी सेहत है, हम कोशिश करें कि उसे सही यूज में लाए। और बेशक मैं हमेशा कहूँगी दीन की दावत करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर मुसलमान की फर्ज है कि हम दीन की दावत करें। तो हम कोशिश करें अच्छी चीजें सीखें, अच्छी चीजें सिखाएं, क्योंकि कुछ भी कम पड़ गया, बहुत ज्यादा कम पड़ेगा कब्र में और आखिरत में, एटलीस्ट कोई कुछ आपका सुन के अमल कर रहा है, एटलीस्ट आपको फ्री में कुछ आता रहेगा ना। क्योंकि हम तो सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े और हम जब इस दुनिया में नहीं रहे तो हम पे पढ़ के हमारे लिए कुछ भेजे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है उसकी भी गारंटी नहीं है। तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि हम अच्छा इल्म आगे पहुंचाएं, ताकि दुनिया में एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बता दिया, आप फॉलो करें, आपने अपने बच्चों को बता दिया, बच्चे एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये रास्ता तो मेरे लिए खुला है मेरी मगफिरत का। तो हम कोशिश करें कि हम हर चीज जो भी हो सके बस अल्लाह को बीच में रख के करो, हर चीज के लिए नियत करें। मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है कि हर चीज की ना नियत करें, कोई भी चीज करो। जैसे ये कहते हैं कि अगर आप अपने शौहर का कपड़ा भी इस्त्री करो ना, आप नियत करो कि अल्लाह ये मैं आपकी रजा के लिए कर रही हूँ। ऑफकोर्स मोहब्बत भी है, बट पहले नियत तो करो। मैं इस्त्री करके मेरे हस्बैंड को उनका कुर्ता दे दूंगी, सवाब तो नहीं मिलेगा ना, सवाब तो नियत से मिलेगा कि अल्लाह को मैंने आपको खुश करने के लिए किया, क्योंकि आपने ये हुकूक मुझे बताया कि अगर मैं ये फॉलो करूंगी मेरे शौहर के हुकूक तो इससे मुझे सवाब मिलेगा, इससे मेरी मगफिरत होगी, इससे मेरी पकड़ नहीं होगी। तो हम पहले अल्लाह को राजी करें और उसके बाद मखलूक को राजी करें। बस अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है उसे शुक्र और सब्र से गुजारे। और बस जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग यहाँ आए। आई एम वेरी वेरी सॉरी वी आर लेट, बिकॉज बहुत ही अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस थे, बट थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम वापस मिलेंगे, और हो सके तो जो भी मैंने बोला है प्लीज अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो, ताकि आपका कुछ अमल मुझसे जो सुन के आपने किया है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे उससे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये जो जमा होने का जो मेन गोल है, विच इज टू मेक आवर ईमान स्ट्रॉन्गर एंड नथिंग एल्स। तो ये हम कोशिश करें, जो इसका मेन मकसद है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, बस हम वो करें। और उसके बाद बस अल्लाह हर किसी को कामयाबी दे, हर किसी को अच्छी सेहत दे, और हमारे दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखे, और हमारे जितनी दूसरी भाई बहन हैं उनकी फिक्र करें कि हम अपने साथ ही साथ उनका भी ईमान कैसे मजबूत कर सकते हैं। और बस दुआ करें कि अल्लाह इस वबा से हमें बचाए, और जल्द से जल्द जो चीज़ें जैसे नॉर्मली चल रही थी उसे वापस वैसे चलाएँ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for such a sweet speech. Now I would like to